नमस्कार। नवरात्र के 8वें दिन हम महागौरी की आराधना करते हैं। महागौरी बुद्धि और शांति की प्रतीक है। यह दिन हम पर्पल डे के तौर पे भी मनाते हैं। आज का यह एपिसोड हम 2 व्यक्तित्व को समर्पित करते हैं। आज की अपनी पहली कहानी बेंगलोर स्थित गीता मंजुनाथ की है। गीता जी एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और डेटा साइंटिस्ट भी है। गीता जी ने अपने अपार बुद्धिमत्ता के बल पर ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग में यूज होने वाले रेडिएशन फ्री और AI बेस्ड थर्मोग्राफी मशीन की खोज की, जो आज कैंसर स्क्रीनिंग में एक मील का पत्थर साबित हुई है। कैंसर की इस जानलेवा बीमारी में मरीज के साथ समर्पण होता है उसके परिवार का, लेकिन उतना ही समर्पण होता है उसकी सेवा और शुश्रूषा करने वाली एक नर्स का। ये कहानी है वृंदा कुलकर्णी की। वृंदा कुलकर्णी एक नर्स है और अपने रिटायरमेंट के बावजूद भी उसी प्रेम और ऊर्जा के साथ वो आज हजारों कैंसर मरीजों की सेवा में जुटी हुई है। तो चलो देखते हैं इन 2 व्यक्तित्व की बुलंद कहानी उन्हीं की जुबानी। One day, I just heard that my close cousin sister got detected with breast cancer. A family affect the emotions, socially, economically, and it can be a disaster. Our test is completely privacy aware. Our test is affordable and can be conducted by low-skilled workers. Within 10 minutes, her test is over as well as her report is ready. Our test has impacted 100,000 women so far, and it is a universal screening method because it can work in rural areas and urban areas. 40 साल से मैं ये प्रोफेशन में काम कर रही हूँ। मुझे भी बचपन से लगता था कि मैं समाज के लिए कुछ करूँगी। वो लोग सोच के कहे कि कैंसर क्यूरेबल नहीं है डिसीज, पाप किया होगा या बुरा काम किया होगा, इसकी वजह से हमको ये बीमारी हो गई। तो इसलिए हमको ऐसा कभी डर नहीं लगा कि हमको कैंसर हो जाएगा। रूटीन ही बन जाता है कि हमको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, घर में भी और हॉस्पिटल में भी। बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग से, मिसबिलीफ से वो पहले दूर करना चाहिए। $684,000 women die every year because of breast cancer. This is the top cancer killer in women today. It is also the top cancer of incidences. Hi, I'm Geeta, founder and CEO of Niramai Health Analytics, where we are developing a new method of detecting breast cancer. One day, I just heard that my close cousin sister got detected with breast cancer. She was just 42 years, and she just lived for 6 months after detection. She had detected very late. And I saw how this late detection can affect a family, affect the emotions, socially, economically, and it can be a disaster for the family. Niramai has developed this new method of detecting breast cancer, which can detect cancer much before a hand can feel a lump in stage 0 or stage 1. Our test is completely privacy aware, where nobody sees or touches the person during the test. Completely radiation free, where we just measure the temperature variations on the chest and analyze this temperature distribution using artificial intelligence based techniques to generate a breast health report automatically, so that a doctor can quickly review before deciding whether the person requires further tests or she's safe. Our test is affordable and can be conducted by low skilled workers. The experience of doing the test is very simple for the lady. The lady just enters a small booth. She sits in front of a device. This is a thermal sensor or infrared imaging device you would have seen in several of the COVID screening locations. And she sits in front of this device for about 10 minutes. Cool air is blown so that there is a temperature stabilization that's obtained. After that, 5 images in frontal and left and right positions are taken. And that's it. Within 10 minutes, her test is over, as well as her report is ready. First, the challenge was to convince the doctors. The doctors had to prove that this works as good or even better than existing modalities. So we conducted systematic clinical studies comparing our test where no human was involved, the machine automatically saying yes or no, and compared this with mammography, ultrasound and biopsy in many cases, along with a doctor. So this
face-to-face comparison with the highest standard of reference was absolutely needed to prove that our test was performing actually even better than the existing methods. Our test has impacted 100,000 women so far, and we are operational in India and recently started in Kenya, Abu Dhabi, Dubai, Philippines, Sweden, Bulgaria, and a few doctors in US are also using it. We have won many international and national awards for our work. We have 31 granted patents in US, India, Canada, Japan, China, Singapore, and Europe. Our test is also used in Maharashtra, and recently, with the help of an NGO, we were able to get this rolling in Andhra Pradesh state as well. We have developed a novel test for breast screening, and it is a universal screening method because it can work in rural areas and urban areas. So my vision is to take this test to every lady on earth and save her from breast cancer death. मैं सौरंदा कुलकर्णी पुणे से हूँ। मैं प्रोफेशनल क्वालिफाइड महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल से नर्सिंग किया है। पिछले 40 साल से मैं ये प्रोफेशन में काम कर रही हूँ और पिछले 12 साल से ही कैंसर पेशेंट्स के लिए काम कर रही हूँ। तो बेसिकली मैं तो मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरे माता पिता टीचर थे, तो वो जो समाज के लिए करते थे, तो मुझे भी बचपन से ही लगता था कि मैं समाज के लिए कुछ करूँगी। फिर रूरल एरिया में वो टाइम पे बहुत मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था। हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत सारे नहीं मिलते थे उनको, तालुका प्लेस या डिस्ट्रिक्ट प्लेस जाना पड़ता था। फिर 10th तक तो हम कुछ करियर फिक्स नहीं करते थे, लेकिन 10th के बाद हमारे पेरेंट्स ने बोला कि जो भी आप प्रोफेशन चूज़ करेंगे वो ऐसा चूज़ करो कि आपको जॉब सेटिस्फैक्शन मिले और समाज के लिए आप कुछ कर सको। तो इसलिए मुझे पहले से ही नर्स बनने का थोड़ा मन में इच्छा थी और 12वीं साइंस के बाद मैंने नर्सिंग कोर्स के लिए प्रवेश लिया। 30 साल में मैंने जनरल वार्ड्स, कैंसर वार्ड्स, ऑपरेशन थिएटर्स, ICUs, फिर नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब सेक्शंस में मैंने काम किया। तो वो सेक्शंस में काम करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि कैंसर पेशेंट के लिए काम करना थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग है और कैंसर के बारे में पेशेंट्स और लोगों में बहुत सारे मिसबिलीव्स या मिसअंडरस्टैंडिंग्स मुझे नोटिस किया, मैंने एक्सपीरियंस किया। वो लोग सोचते थे कि कैंसर क्यूरेबल नहीं है डिसीज, और ये कांटेक्ट से होता है, मतलब एक दूसरों को स्पर्श करने से होता है। और ये जो बीमारी हमको गॉड्स पनिशमेंट जैसी है। तो पहले हमने कुछ से पाप किया होगा या बुरा काम किया होगा, इसकी वजह से हमको ये बीमारी हो गई। ऐसा बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स उनके मन में थे। तो मैंने सोचा थोड़ा कैंसर के लिए अवेयरनेस होना जरूरी है। कैंसर पेशेंट्स के ट्रीटमेंट में क्या होता है कि ये लॉन्ग टर्म क्रॉनिकल बीमारी है। जो मेडिकेशन जो भी लेते हैं वो लॉन्ग टर्म लेना पड़ता है। वो मेडिकेशंस के साइड इफेक्ट्स भी रहते हैं। तो जो पेशेंट्स रहते हैं उनको बीमारी से भी तकलीफ होती है और मेडिसिन से भी साइड इफेक्ट्स की वजह से उनको तकलीफ होती है। बेसिकली ये फ़र्क है। तो बहुत साल ये नर्सिंग फील्ड में काम करने के बाद मुझे एक्सपीरियंस हुआ या नोटिस हुआ कि कैंसर पेशेंट केयर में बहुत ज़्यादा जोखिम होती है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का और रिस्की जॉब रहता है। जो कैंसर पेशेंट के लिए जो मेडिसिन यूज करते हैं वो कीमोथेरेपी, वो बनाने के लिए बहुत केयर लेनी पड़ती है। हमको ग्लोव्स पहनने पड़ते हैं, गाउन पहनने पड़ते हैं, गॉगल पहनने पड़ते हैं, क्योंकि वो ड्रग्स बहुत हार्मफुल रहते हैं। सिंगल ड्रॉप भी अगर गिर गया हमारे स्किन के ऊपर तो उसका हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है। कभी कभी उसकी वजह से इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। तो नेचुरली इनिशियल फेज में क्या होता है, जो फ्रेशर्स रहते हैं जिनको कम एक्सपीरियंस है, तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का और इसकी जॉब है उसके लिए उनका
थोड़ा नर्वसनेस आता है, फिर बाद में हमारे सीनियर्स लोगों के साथ काम करते करते वो लोग सीख जाते हैं। लेकिन ये सही है कि ये कैंसर पेशेंट के साथ काम करने के लिए बहुत थोड़ा हेजिटेट करते हैं। कैंसर केयर में एक पैलिएटिव केयर ऐसा एक एस्पेक्ट है, जो लोग लास्ट स्टेज में हॉस्पिटल में जाते हैं, पहले इनिशियल फेज में वो डिटेक्ट नहीं होता है या वो ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स का केयर एक केयर बियॉन्ड क्योर मतलब पैलिएटिव केयर ऐसा एक उसका एस्पेक्ट है। तो ये फेज में काम करना बहुत चैलेंजिंग है। वहाँ बहुत सारे नर्सिंग इश्यूज रहते हैं, लाइक वुंड हेवी ह्यूज फाउल स्मेलिंग फंगेटिक वुंड मैनेजमेंट रहता है। पेशेंट का स्टोमा केयर के मतलब कोलोस्टोमी ट्रैकेस्टोमीज लाइक देन सम पेशेंट्स कम विथ लिम्फेडेमा लाइक दैट। तो ट्रेनिंग में पढ़ते हैं ना कि कैंसर की कॉजेस क्या है, कैंसर क्या बीमारी है, क्या सिम्टम्स है, कैसे होते हैं। तो इसलिए हमको ऐसा कभी डर नहीं लगा कि हमको कैंसर हो जाएगा। वो तो पेशेंट और पेशेंट के रिलेटिव सोचते हैं, नेबर लोग सोचते हैं, जिनमें अवेयरनेस नहीं है। तो मेरा एक एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि एक दिन मैं ऐसा कैंसर पैलिएटिव सेटअप में काम कर रही थी। तो एक जूनियर नर्स मेरे पास आई और उन्होंने बताया कि मैडम सो एंड सो XYZ पेशेंट बेड नंबर, वो पेशेंट मेडिसिन लेने के लिए रिफ्यूज़ कर रहा है। तो मैं ठीक है, मैं आके देखती हूँ। तो मैं राउंड में पेशेंट के पास चली गई। तो ओल्ड एज आदमी था थोड़ा, तो मैं गई उनके पास। वो मेरा जूनियर नर्स को बोला तुम जाओ, तुम तुम्हारा काम करो। मैं गई उनके पास, चेयर लेके बैठी, उनके साथ दूसरा बात किया, मतलब कैसे हो, सुबह से क्या खाना खाया, आपको कैसे लगता है, मेडिसिन लिया था तो नहीं लिया। तो मैंने बोला क्यों नहीं लिया। तो उन्होंने बताया कि अगर मेरी बीमारी नहीं ठीक होने वाली है तो ये मेडिसिन लेने से मुझे क्या फायदा है, तो और मैं मरने वाला भी हूँ। तो मैंने बोला देखो, ये दुनिया में कोई भी अमर बनने के लिए नहीं आया है, मुझे भी एक दिन मृत्यु को स्वीकारना है। तो आप ऐसा मत सोचो, जो भी आपकी जिंदगी है वो कंफर्टेबल कैसे आप कर सकते हैं, तो वैसा आप सोचो। और ये मेडिसिन लेने से आपका बीमारी ठीक नहीं होता है, ये हमको मालूम है, लेकिन आपको वो बीमारी से जो भी तकलीफ हो रही है वो तो कम होती है ना। तो आप पॉजिटिव एटीट्यूड से वो मेडिसिन ले लो। और मैंने उनको एक गीता का श्लोक सुनाया, जातस्य हि मृत्युर्मृत्युः ध्रुवै च। तो मतलब ये श्लोक का अर्थ ऐसा है कि हर एक जो जन्म लेता है उसको मृत्यु आता ही है। तो इसलिए आप ये मत सोचो और आप मेडिसिन ले लो। फिर उन्होंने वो मेडिसिन मेरे हाथ से ले ली। तो मैंने ऐसे भी इंसिडेंसेस देखे हैं कि पेशेंट को पता नहीं है उसको कैंसर हुआ है और वो आया है हॉस्पिटल में, और रिलेटिव्स भी चाहते हैं कि उसको पता ना चले, कि वो डर जाए। तो और क्या होता है कि आजू बाजू के पेशेंट्स भी कैंसर के रहते हैं ना, तो 2-4 दिन में हॉस्पिटल में रहने के बाद उनको पता चलता है कि मुझे कैंसर हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन में वो और नर्वस हो जाते हैं कि मुझे अभी तक पता है क्यों नहीं है। तो वो भी स्ट्रेस में रहते हैं, उनकी फैमिली भी स्ट्रेस में रहते हैं। और पता चलने के बाद फिर हमारे पास हमारा एक टीम रहता है, उसमें सोशल वर्कर रहते हैं, साइको सोशल मेडिकल वर्कर रहते हैं। तो ऐसा बहुत सारा इश्यूज आया तो हम लोग फैमिली मीटिंग्स लेते हैं, उसमें डॉक्टर रहते हैं, नर्स रहती है, मेडिकल सोशल वर्कर रहते हैं। तो ऐसा जो साइकोलॉजिकल इश्यूज अगर हो जाए तो हम लोग हैंडल करते हैं, डिस्कस करके उनके साथ। पेशेंट का जो ट्रीटमेंट का पार्ट है तो इनको काउंसलिंग करके 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 उनसे पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है। ऐसा नहीं कि सब पेशेंट में रिस्पांस नहीं मिलता है पॉजिटिव रिस्पांस। कैंसर केयर में सिर्फ पेशेंट पे फोकस नहीं किया जाता है, पेशेंट का फैमिली पे भी फोकस किया जाता है। दूसरी बात है, सिर्फ फिजिकल केयर नहीं देखी जाती है, उसमें वो सोशल एस्पेक्ट, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट, ये सब देखना पड़ता है। और पेशेंट का केयर में फैमिली लोगों को भी
इन्वॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म क्रॉनिकल इलनेस है। तो कुछ दिन हॉस्पिटल में रह के वो बाद में घर भी भेजते हैं। तो घर में जाने के बाद घर वाले लोगों को, फैमिली मेंबर्स को उसकी केयर करनी आना चाहिए, इसलिए केयर गिवर्स ट्रेनिंग भी रहता है, तो वो भी हम उनको देखते हैं। तो बहुत सारे इमोशनल इंसिडेंसेस होते हैं, लेकिन हम पहले से ही डिसाइड करके ही प्रोफेशन में आते हैं कि जब आप होम इन्वायरमेंट में हो तो हॉस्पिटल को बोल जाओ, जो हॉस्पिटल में है तभी होम इन्वायरमेंट को बोल जाओ। तो हम थोड़ा बैलेंस रखते हैं। तो एक इंसिडेंस ऐसा था कि एक 8-10 साल का बच्चा था, उसको ब्लड कैंसर हुआ था और ही वॉज लिटरली मतलब डाइंग स्टेज पे था। वो उसकी माँ विडो थी, उसका गोद में वो लेटा हुआ था और डेथ का पहले एक आवर था शायद वो, और वो मतलब ऐसा बार बार मम्मी को बोल रहा था कि मुझे हनुमान जी लेने के लिए आए थे, हनुमान जी के पास जाना है, वो मुझे बुला रहे हैं। तो उसकी मम्मी बहुत रो रही थी। हमारा पूरा टीम उनको बेड के पास खड़ा था, डॉक्टर थे, नर्सेस थे, सोशल वर्कर थे, सोशल काउंसलर थे, सब लोग हमको सपोर्ट करने के लिए वहाँ खड़े रहे थे। और 1 घंटा में वो बच्चा का डेथ हुआ। तो वो सब संभालने के बाद मैं घर गई। तो एक्चुअली घर जाने के बाद ऐसा एक फंक्शन था कि फैमिली फ्रेंड का बेटा का बर्थडे में हमको जाना था। तो मैं थोड़ा इमोशनल अपसेट ही थी, लेकिन वहाँ जाने के बाद भी मुझे जो बच्चा का बर्थडे था उससे वही मुझे वो बच्चा मतलब दिखा जा रहा था। तो फिर मैं थोड़ा वॉशरूम में जाके फ्रेश होके वापस आई। फिर मेरा घर वालों ने भी पूछा कि वो क्या हुआ करके, तो मैं उसी टाइम उनको बता नहीं सकी, लेकिन बाद में थोड़ा मुझे सेटल किया। लेकिन ऐसा बहुत सारे इमोशनल चैलेंजेस मोमेंट्स हमारे काम करने के फील्ड में आते हैं। तो ये सब बैलेंस जो है तो हम लोग फैमिली सपोर्ट के बिना नहीं कर सकते हैं। तो हमको मेंटली प्रिपेयर करना पड़ता है कि हमारा प्रोफेशन जो भी है तो हमको किसी भी टाइम पर कभी भी कहीं भी हमको पेशेंट केयर के लिए जाना पड़ता है। अभी अगर मेरे बारे में बताऊँ तो मैं बोलने के लिए रिटायर्ड नर्स हूँ। रिटायर्ड हमारा डिक्शनरी में शब्द ही नहीं है सच में, क्योंकि मैं कुछ क्राइटेरिया से, एज लिमिट की वजह से किसी इंस्टीट्यूशन से मैं रिटायर हूँ, लेकिन मेरा जो पैशन है तो मैं अभी भी कैंसर लोगों के साथ काम करती हूँ, होम केयर विजिट करती हूँ और जहाँ जहाँ स्पेसिफिक नर्सिंग प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं वहाँ मैं जाती हूँ। और मेरा पैशन है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। और दे नीड सपोर्ट, एक्चुअली उनको सपोर्ट की ज़रूरत है। और जो फैमिली मेंबर्स है उनको सिखाना पड़ता है कि उनको भी उनकी केयर कैसे लेनी चाहिए। कि ड्रेसिंग भी हम लोग सिखाते हैं, फिर अगर कोलोनोस्टोमी में बैग रखते हैं उसका केयर कैसे लेना वो भी हम सिखाते हैं। फिर अगर किसी को ट्रैकियोस्टोमी है लंग कैंसर की वजह से, थ्रोट कैंसर की वजह से, तो वो ट्यूब कैसे साफ करना है, ये सब हमको डेमोन्स्ट्रेशन करके घर में जाके हम बताते हैं। फैमिली का रिस्पॉन्स बोला तो मैं तो अभी सेटल हूँ। मेरा हस्बैंड था, वो गवर्नमेंट सर्विस में था, वो रिटायर हो गए हैं। और मुझे 2 बेटियाँ हैं, वो दोनों भी इंजीनियर है और दोनों फॉरेन में जॉब करते हैं। तो उनका शादी भी कर दिया है। तो मुझमें इतना फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम भी मिलता है और मुझे अच्छा भी लगता है। तो एक किस्सा मैं सुनाऊंगी कि मेरा बेटे का बर्थडे था 7th में की वो। तो मैंने उनको फ्रेंड्स को लेके, सोसाइटी में जो फ्रेंड्स है उनके लेके एक गार्डन में बुलाया था और मैं वार्ड में अटक गई ऐसे ही लेक की वजह से। तो मैंने क्या किया कि फोन भी नहीं कर सकते हैं ना उसी टाइम पे, तो मैंने मतलब हमारे जो बॉयज़ रहते हैं तो उनको मैंने वहाँ भेजा
और मेरे हस्बैंड को फ़ोन करने के लिए दूसरों को बोला और वो वहाँ 5 बजे आए और वहाँ गार्डन में वो एंजॉय करके घर चले गए और मैं 7 बजे घर पहुँची। ऐसा भी होता है। तो हम एज अ नर्स, प्रोफेशनल नर्स, हमारा एक रूटीन ही बन जाता है कि हमको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, घर में भी और हॉस्पिटल में भी। घर में हम अगर हमारा मॉर्निंग शिफ्ट है तो वो 7:30 को शुरू होता है, तो हमको घर में सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग 4 बजे हमको उठना पड़ता है, घर का सारा काम करके बच्चों के लिए टिफिन बनाना पड़ता है, हस्बैंड के लिए टिफिन बनाना पड़ता है, और जो भी प्रायोरिटी घर में है वो थोड़ा संभाल के वो अरेंजमेंट करके हमको कैसे भी हालत में 7:30 बजे ड्यूटी के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि जो नाइट ड्यूटी करने वाले नर्सेस है उनको हमको छोड़ना पड़ता है। फिर 7:30 बजे आने के बाद हम जो यूनिफॉर्म पहनते हैं तो हमको एक बहुत ऊर्जा मिलती है, उससे हमको एक मोटिवेशन मिलता है, और हम घर में जो भी छोड़ के आए हैं वो हम भूल जाते हैं, मतलब होम एनवायरनमेंट पूरा भूल जाते हैं, तो हम पेशेंट के एनवायरनमेंट में आते हैं। तो वहाँ पूरा जो भी हमारा मॉर्निंग से पेशेंट का पर्सनल हाइजीन है, मेडिकेशन है, आईवी देना है, उनका जो भी ड्रेसेस करना है, ये सब पेशेंट का केयर करने के बाद हमारा पूरा दिन चला जाता है। और उसके बाद हम बहुत सारा टायर्डनेस होता है और वो निगेटिव एनवायरनमेंट में रहने से हमको भी थोड़ा निगेटिविटी आ जाती है। लेकिन एक बार वो नर्सिंग का यूनिफॉर्म उतर दिया और हॉस्पिटल के बाहर निकल गए तो हम हॉस्पिटल का फीलिंग्स वहाँ ही छोड़ के हम लोग घर का फीलिंग्स में आते हैं। तो ये हमको करना ही पड़ता है, क्योंकि हमको वैसा पहले से ही सिखाया जाता है कि इमोशनल बैलेंस कैसे रखना है। इसलिए हम हॉस्पिटल का हॉस्पिटल में और घर का घर में बातें छोड़ देते हैं, इसलिए हम लोग मैनेज कर सकते, बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं। मैं जब हॉस्पिटल से ड्यूटी खत्म करके जब घर में जाती थी तभी बच्चा लोगों को मम्मी के मिलने के लिए बहुत दिल होता है, तो वो भाग के आते थे मिलने के लिए। तो हम लोग हमको भी लगता था कि मुझे उनको गोद में ले लो या उनके पास जाओ, उनको भी ले लो गोद में ऐसा। लेकिन हम लोग उनको बोलते थे मैं अभी हाथ पाँव धो के आती हूँ, ऐसा बोल के फ्रेश होके फिर उनके पास हम लोग जाते थे। तो इतना साल मैंने काम करके और कैंसर पेशेंट्स के साथ केयर लेके उनको ट्रीट करके उनका फैमिली मेम्बर के साथ भी रह के उनका सब इश्यूज समझ के मैं ऐसा संदेश देना चाहूँगी कि जो भी सिचुएशन है वो आप डिसीज है, क्राइसिस है, वो आप एक्सेप्ट करो और जो उसके अनुसार पॉजिटिव एटीट्यूड से आपका जो लाइफ स्टाइल है वो आप एडजस्ट करो, क्योंकि मृत्यु तो सबको आना है एक ना एक दिन। तो उसकी चिंता छोड़ने का और जो भी हमारे सामने जो दिन आता है वो हम खुशी से जीना चाहिए। वो सबसे पहले कैंसर अवेयरनेस बहुत जरूरी है, उनको मोटिवेशन करना बहुत जरूरी है कि मैं पहले बताया कि बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग से मिसबिलीफ से वो पहले दूर करना चाहिए। फिर मेडिसिन कंप्लायंस रखनी चाहिए, क्यों मेडिसिन लेना चाहिए, अगर कैंसर क्योर नहीं भी होने वाला है तो ये मेडिसिन क्यों लेनी जरूरी है। और जो भी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अभी बहुत सारे कॉजेस है कैंसर के, जैसे कि टोबैको च्यूइंग है, स्मोकिंग है, अल्कोहल ड्रिंकिंग है। तो ये सब बातें ध्यान में रख के आप भी अपने नेबर हो या रिलेटिव्स हो उनको आप लोग भी बताना चाहिए कि ये सब बैड हैबिट्स आप छोड़ देना चाहिए और आप भी उससे दूर रहना चाहिए। तो ये मेरा संदेश रहेगा, एक्सेप्ट एंड एडजस्ट।